ډاکټر پچینا صاحب او ډاکټر لوکا صاحب ستاسو په تعاون سره د جماعت تاسو پاکستانیانو ته مسلمانانو ته ښکاره کړی دی. زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. دا میلمانه او دا ټوریزم راځي تاسو له پکار چې دا لارې هم ګودرې هم برابر کوي. دلته کې د میلمنو دپاره ډېر مشکلات دي. زمونږ د جومات دروازه هم خرابه ده، لار هم خرابه ده، د اوبو سیسټم هم خراب دی، بجلی هم نشته دی. او مطلب دا دی چې دلته کې سیټینګ میټینګ وشي چې میلمنو ته هم تکلیف نه وي او نور چاته هم نه وي. د څوکیدارانو کوټه هم لږه خرابه ده. نو زه ډاکټر لوکا صاحب ته او پچینا صاحب ته او دې ټولو فرانچسکو صاحب ته د خپل طرف نه پیغام ورکوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاہور سے رخت سفر باندھا سوات کے لیے کہ سوات میں وہاں جائیں جہاں لوگ نہیں جا سکتے. سوات میں لوگ آتے ہیں کلام، ملم جبہ، شانگلہ اور ساتھ کی چھوٹی چھوٹی وادیوں میں. یہ تھا کہ ہم لوگ ایسی جگہیں سوات میں ڈسکور کریں کہ جہاں جانا بہت مشکل ہے، جا کے آنا اس سے بھی مشکل ہے. ان چیزوں کو دریافت کرتے ہوئے ہم لوگ اوڈی گرام پہنچے. اوڈی گرام میں سلطان محمود غزنوی مسجد ہے. اس مسجد کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مسجد کو سلطان محمود غزنوی نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا جب انہوں نے یہاں پہ حملہ کیا. اس کے بعد ان کے جانے کے بعد یہ مسجد کھنڈرات میں بدلتی گئی اور اس کے آثار بہت معدوم ہو گئے. پھر 1984 میں یہاں پہ کام کرتے ہوئے لوگوں کو ایک پتھر ملا. اس پتھر کو جب پلٹ کر دیکھا تو اس پہ کچھ تحریر تھی. وہ تحریر یہاں پہ حکومتی تحویل میں دی گئی تاکہ اس پہ ریسرچ ہو کہ یہ ہے کیا چیز. جب اس پر حکومتی ٹیم نے ریسرچ کی تو اس کے آثار ملے سلطان محمود غزنوی کی مسجد کے. کچھ آثار ایسے ملے کہ حکومت پاکستان کو اٹلی کی حکومت کے ساتھ رابطہ کرنا پڑا. اٹلی کی حکومت نے دلچسپی لی، اخراجات اٹھائے پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، اور پھر یہ ساری جگہ دریافت کی جو ابھی ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں. یہاں تک پہنچے ہم کس طرح ہیں یہ میں جانتا ہوں. ہمارے ساتھ کیا ہوا شانگلہ جب ہم پہنچے، ناقابل یقین واقعہ کہ ہمارے پاؤں تھلے سے زمین نکل گئی. وہ ہم آپ کو بتائیں گے آخر میں. ابھی ہم آپ کو اوڈی گرام میں ہی رکھتے ہیں. یہاں پہ محمد رحیم صاحب ہمیں ملے ہیں. انہوں نے ہمیں یہاں کی تاریخ بتائی ہے، مسجد کی تاریخ. یہ یہاں پہ پچھلے 5 سال سے زائد عرصہ سے ہیں. ایک کٹھن وقت انہوں نے گزارا ہے. آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسا وقت یہاں گزارا، یہاں موسمی حالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں، اس دوران یہ کس طرح سروائیو یہاں کرتے ہیں. یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے. محمد رحیم. السلام علیکم. میرا نام محمد رحیم ہے. میں یہاں سلطان محمود غزنوی کے مسجد میں 5 سال سے ڈیوٹی کر رہا ہوں. جناب ہسٹری اور تاریخ ان کی یہ ہے کہ یہاں سے 3000 سال پہلے 400 سال حکومت کیا ایرانی حکومت نے. آتش پرست اس کو کہتا ہے. پھر سکندر اعظم آیا یونان سے اور یہاں جتنی بھی لوگ رہتے تھے اس کو قتل کیا اور کرش کیا. پھر اس کے بعد یہ جگہ ویران پڑی تھی. پھر کچھ پتہ نہیں 1000 سال 500-6 سال پھر جاپان اور انڈیا اور نیپال بدھ مت آ گئے اور پھر یہاں اپنا رام شروع کر کے یہاں دوبارہ اپنا مندر بنایا اور دوبارہ اس جگہ کو آباد کیا. پھر 1000 سال کے بعد یا 1200 سال کے بعد سلطان محمود غزنوی یہاں آ کر اور انہوں نے یہاں پر 2 حملے کیا، لیکن سلطان محمود غزنوی یہاں سے ناکام ہو کر چلا گیا. جب وہ کابل تک پہنچ گیا سلطان محمود غزنوی تو انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پھر خوشحال میرا پوتا ہے اور اس کو جو ہے نا آپ ساتھ لے کر اور جنگ شروع کرو. پھر سلطان محمود غزنوی کا بھتیجا آ گیا اور اور حکیم منصور جو ہے نا انہوں نے پھر خوشحال کو جنگ کا سپاسالار بنا دیا اور اس کو کہا کہ آپ آگے ہو جا اور ہم پیچھے ہو جائیں گے. اور انہوں نے جنگ شروع کیا. شروع میں پھر خوشحال شہید ہو گئے. اس کا اپنا نام غازی بابا ہے اور نیچے ان کا روضہ ہے. پھر اس کے بعد جو جنگ شروع ہو کر یہاں کنگ آف دراجہ گرا تھا وہ یہاں سے بھاگ گیا کالام اور ملم جبے میں
वहाँ उनने रिहाइश गाह रखा है और मदियन में। फिर उसके बाद सुल्तान महमूद गज़नवी की भतीजे ने हाकिम मंसूर ने नूशगुद्दीन को बताया कि यहाँ आकर एक मस्जिद बनाई। उन्होंने मस्जिद बनाया और फिर जो है ना फिर ये मस्जिद जो था ना फिर अल्लाह की तरफ से कुछ आफात कुछ आया, जितनी भी थी ये मस्जिद जो है ना सारे के सारे मिट्टी में जो है ना ये ख़त्म हो गया, दीवारें छत भी गिर गया। फिर 1000 साल के बाद जो है ना यहाँ एक बंदा आया था तो उन्होंने घास काट रहा था तो उसको एक पत्थर मिल गया। उस पत्थर पर लिखा था कि ये मस्जिद सुल्तान महमूद गज़नवी के ज़माने में बना है, हाकिम मंसूर ने बनाया नूशगुद्दीन के ज़रिए। और फिर 1000 साल के बाद जो है ना फिर ये मस्जिद था ना ये इस तरह वीरान पड़ा था, यहाँ कोई न था, मिट्टी में था। फिर इटली की आसारी कदीमे ने पाकिस्तान म्यूज़ियम के साथ मिलकर और खुदाई करके 1985 से लेकर 2006 तक खुदाई करके इसको दरियाफ़्त किया। 2000 साल पहले इस मस्जिद में अज़ान होते थे, 1000 साल बाद यहाँ जो है ना कुरान पाक ख़त्म होते थे, यहाँ अल्लाह अकबर होते थे और जमा होते थे, नमाज़ पढ़ते थे। तो अब 1000 साल के बाद भी आज ये तारीख़ है कि अल्लाह की फजल करम से यहाँ हमारे हाथों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ लेके आए और सबसे ऊपर ख़त्मे भी हमने किया, अज़ान भी हम देता है और जमा भी हम करते हैं, मस्जिद भी हम पढ़ते हैं। तो अब भी ये मस्जिद इंशाअल्लाह अल्लाह की फजल करम से ये मस्जिद अब भी आबाद है। जी अच्छा मोहम्मद रहीम भाई, जी सर। सुल्तान महमूद गज़नवी मस्जिद को आपने संभाला हुआ है यहाँ पे। जी सर। अजान भी आप देते हैं। जी सर। मुअज्जिन हैं। जी सर। इमामत भी करते हैं। जी सर। और यहाँ पे आपको मुश्किलात क्या पेश आती हैं? यहाँ तो मुश्किलात तो कुछ भी नहीं है और ये जगह बिल्कुल वीरान है, यहाँ कुछ भी नहीं होता है। देखने के लिए टूरिज़म भी आते हैं और ये इतनी पुरसकून और एक ख़ूबसूरत माहौल है कि इंसान करे कि मैं यहाँ दिन रात हूँ। इतना ये अल्लाह की मस्जिद है और पहले जितनी भी जिस मुसलमान ने इसको आबाद किया, इतना ख़ूबसूरत जगह है कि बंदा कहता है कि मैं यहाँ रहूँ। यहाँ मुश्किलात तो बस ड्यूटी करना ही पड़ता है, मुश्किलात तो इतना नहीं आता है। पहले मुश्किल थी, जब अब 4-5 साल हो गया मैं आ गए तो मुश्किल। रहीम भाई, पहाड़ों में घिरी ये मस्जिद, पानी यहाँ चश्मों का, चले पानी तो आपको साफ़ सुथरा मिल गया जो सेहत बख्श पानी भी है। खाने के मामलात कैसे इन पहाड़ों में? ना तो हमें कोई आते हुए यहाँ पे खेत नज़र आए, ना सब्ज़ी फरोश नज़र आए, ना हमें कोई यहाँ पे आटा दाल दलिया का सामान नज़र आया। किस तरह ये चीज़ें आप मैनेज करते हैं? बस सर, जब ड्यूटी के लिए हम आते हैं तो इस नीयत से आते हैं कि रोज़ी हलाल करना है, बच्चों के लिए जो जाते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ी हलाल कर रहे जाना है। ड्यूटी भी होता है तो सुबह नाश्ता करके तो यहाँ से 4-5 बजे शाम को हम वापस चले जाते हैं। तो आपके सामने है, यहाँ तो खाने पीने की कुछ भी नहीं मिलता है, पहाड़ भी है। तो यहाँ से जो है ना हम अपने आप को निमटते हैं और जो है ना वो सब्र करते हैं। बस यहाँ से शाम को चले जाते हैं अपने घर तक, तो फिर वहाँ खाना शाना करते। तो घर आपका कहाँ पे है? जी सैदुल शरीफ है, मैं स्वात म्यूज़ियम का मुलाजिम हूँ और म्यूज़ियम के पीछे मेरे अपना क्वार्टर है। अच्छा, मैं वहाँ तो ये राज अब खुला कि आप स्वात म्यूज़ियम के साथ मुलाजिम भी हैं। जी मैं और यहाँ पे आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खिदमात से अंजाम दे रहे हैं और ड्यूटी भी कर रहे हैं। जी और पिछले तकरीबन 5 साल से ज़्यादा अरसे से आप यहाँ मुकीम हैं। जी जी बिल्कुल। आते हैं, अजान देते हैं, नमाज करवाते हैं, लोगों को दरस व तदरीस का सिलसिला कुछ देर रखते हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके लिए आना जाना मौसमी सख्ती आपकी राह में हाइल तो नहीं होती कि सुबह सुबह आपने आना है यहाँ पे? हम तो जब आते हैं तो मोटरसाइकिल पे आते हैं, बारिश हो या धूप हो या जो भी हो, तो हम ड्यूटी के लिए यहाँ अपने आप को हाजिर करते हैं और यहाँ आते हैं। हम ड्यूटी देते हैं, चाहे जितनी भी बारिश हो, सर्दी हो या गर्मी हो, लेकिन हम आते हैं। तो आप यहाँ पे आते हैं, इसके बारे में अभी हमें कुछ और मज़ीद डिटेल से बताएं इस मस्जिद के बारे में कि इसके कौन कौन से दरीचे अभी तक आपने सामने नहीं रखे?
देखिए सर, ये मस्जिद है ना, मस्जिदों, ये बड़े अल्लाह वाले लोगों ने आबाद किया है, उनकी बारी थी पहले। अब अल्लाह ने हमारी बारी लगा दिया, तो अब अज़ान भी होता है, मस्जिद भी मैं जमा भी करता हूँ, तिलावत भी यहाँ होता है। अब भी अल्लाह की फजल करम से एक खंडरात है असारी कदीमी की, तो अब भी ये मस्जिद आबाद है। अल्लाह ने जिसके ऊपर जिसको बनाया, जिसको आगे किया, तो हमारे हाथों ने अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त ने आबाद किया है। अच्छा रहीम भाई, आते हुए कुछ लोगों से जो चीदा चीदा हमें लोग मिले, मेरा ख्याल है शायद 6 या 7 लोग मिले, उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि वहाँ रहीम भाई हैं जिनके पास मिरास है सुल्तान महमूद गजनवी की। जी बिल्कुल इसमें किस हद तक हकीकत है? सर, हकीकत ये है कि मैं हूँ मोहम्मद रहीम काका खेल। हमारी दादा जो है ना, ये पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो दादा किस तरह से अल्लाह ने उसको जो है ना इज़्ज़त दिया। आपके दादा का नाम? वो जो है ना काका खेल, ठीक, वो काका से उसका है नाम, उसको ज़्यादा कहते हैं काका खेल। काका खेल। काका से वो नौखार में उसका मज़ार है, जिस तरह पीर बाबा है, सीधू बाबा है। ठीक, हाँ, इसी तो तरह हम- काका हो गया। हाँ, वो ठीक काका है। है, वो काका खेल मियाँ साहब है ना। अच्छा, तो उसको जो है ना, उसकी वजह से जो है ना मैं यहाँ आया, फिर 3 4 5 साल यहाँ जो है ना शाम तक भूखा भूखा भूखा। फिर मुझे ये पता नहीं था कि अल्लाह जिसको अपनाता है उसको भूखा रखते हैं, मुझे ये पता नहीं था। मेरा उस्ताद है मुफ्ती हजीजुल्लाह उस्ताद, मैंने उससे दर्स भी किया, कुरान भी पढ़ा। वो फिर बाद में उसने मुझे बताया कि रहीम, अल्लाह जिसको अपनाता है पहले भूख प्यास को जो है ना उसको इस तरह रखता है, फिर उसके बाद अपनी तरफ लेके आता है, फिर उसके बाद जो अपनी तरफ लेके आता है, फिर अल्लाह कहता है ये मुझसे जुदा नहीं होगा, ये अब मेरा है और मैं इनका हूँ। रहीम भाई बहुत खूबसूरत बात की आपने कि जिसको अल्लाह ताला अपनी राह पे बुला लेना, हाँ, वो उसका महबूब तरीन बंदा होता है। होता है बिल्कुल। आप उस ज़ात बारी ताला के महबूब तरीन बंदों में से हैं। यहाँ सारा मस्जिद का इंतज़ाम व इंसराम आपने संभाला हुआ है, और यहाँ पे हमें हर तरह का सुकून, जो सुकून हमें यहाँ मिला है ना, वो हमें आज तक कहीं नहीं मिला। बिल्कुल मस्जिदें शहरों में भी हैं, वहाँ भी जाके सुकून मिलता है, लेकिन जो सुकून यहाँ आके हासिल हुआ है ना, वो हमें कहीं हासिल नहीं हुआ। हम लोग ओडीग्राम, लाहौर से ओडीग्राम आए। ओडीग्राम आके पता चला ये मस्जिद तो इटली के ताउन इंतज़ाम से चल रही है। यहाँ सारे मामलात 1984 से इटली वाले देख रहे हैं। इटली वालों में कुछ तो ऐसी बात है जो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, और 1984 में डॉक्टर लूका और डॉक्टर पेचीना को भेज दिया। इटली वालों से आएगा भी, वो अभी रमज़ान के बाद पाकिस्तान में आएगा। डॉक्टर लूका, आएगा, इस पे चटमत करवाएगा, मस्जिद में काम करवाएगा। डॉक्टर लूका के लिए इंग्लिश में कोई मैसेज छोड़ देंगे? उस डॉक्टर लूका को इंग्लिश में ये मैसेज छोड़ो कि यहाँ ये जो मुलाजिम होता है ना, हमारी मस्जिद के दरवाज़ा आपने देखा है कि ये मस्जिद के दरवाजे के ये हाल है, रास्ता ख़राब है जी, यहाँ मेहमानों के लिए अच्छा बंदोबस्त करो, रास्ते की, पार्किंग की, और ऊपर तक जाने का। जी डॉक्टर लूका अगर, और डॉक्टर पेचीना, अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे तो इस चीज़ पे थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा कि यहाँ लोगों के आने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। बहुत दुश्वार गुजार और ख़तरनाक रास्ता है कि जान से जाने का भी चांस है। डॉक्टर लूका और डॉक्टर पेचीना, हम आपकी काविशों को सराहते हैं कि आपने पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों के लिए जो काम किया। नामों से तो ये लगता है कि शायद कोई गैर मुस्लिम हो, लेकिन मैं कन्फर्म नहीं कहता कि किस मज़हब से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन जो काम डॉक्टर लूका और डॉक्टर पेचीना पाकिस्तान के लोगों के लिए और ख़ासकर मुसलमानों के लिए कर चुके हैं इस मस्जिद को दरियाफ्त करके, वो बहुत ही अजीम काम है। आपको सल्यूट है डॉक्टर लूका, आपको सल्यूट है डॉक्टर पेचीना। आपने हम लोगों को एक ऐसी जगह मुहैया की, हमारी तारीख़ को ज़िंदा करने में आपने जो किरदार अदा किया है वो भूलने वाला नहीं है। मैं सब पाकिस्तानियों की तरफ से डॉक्टर लूका और डॉक्टर पेचीना को सल्यूट पेश करता हूँ। कबूल कीजिएगा डॉक्टर लूका, डॉक्टर पेचीना।
اور دوسری بات یہ سر کہ ان کو پشتو بھی آتا ہے اردو بھی آتا ہے. اچھا مزے کی بات یہ دیکھیں نا رحیم بھائی آہستہ آہستہ ہمیں چیزیں بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر لوکا اور ڈاکٹر پیچینا کو اردو اور پشتو آتی ہے. کمال ہے بھائی. رحیم بھائی بہت آپ کے ساتھ تو سیٹنگ کرنا پڑے گی انشاءاللہ اور لمبی سیٹنگ ہوگی. پھر آپ اصل میں نا آپ بھی آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں. انشاءاللہ. رحیم بھائی ہمیں اجازت دیجیے. آپ نے ہمیں یہاں مسجد کی ساری تاریخ بتائی اور ایسی تاریخ ہم نے نہیں سنی. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, بہت سکون ملا یہاں پہ آ کے. ہمیں اجازت دیجیے اور میں اب اپنے اٹلی میں نمائندے ہیں ان کو کہوں گا کہ وہاں محکمہ آثار قدیمہ والوں سے ملیں, وہاں سے ڈاکٹر لوکا اور ڈاکٹر پیچینا کا ایڈریس لیں ان سے ملاقات کے لیے, تاکہ اس کو ہم اس فوٹیج کو پھر مکمل کریں. یہ ہماری فوٹیج مکمل ہی ہوگی جب ڈاکٹر لوکا اور ڈاکٹر پیچینا کا انٹرویو آئے گا اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اجازت جانے سے پہلے میں محمود صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو کل لنچ کا دعوت دیتے ہیں. ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے, پھر اس کے بعد آپ کو رخصتی ہوگا. ویسے نا سواتی ڈشوں کا سن کے اب انکار تو بنتا نہیں ہے رحیم بھائی کو بالکل کہ کل ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے ہم انشاءاللہ. انشاءاللہ.